Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Because I know that this is a very big opportunity for me to serve senior Vaishnavas for my purification. And that's our goal, is it not? So I'm very, very indebted to you for giving me this opportunity to revise, get my act together. And although I'm very nervous, so it helps if you can see faces, because otherwise I don't know where I'm going wrong. And I will rely on you, Kopi Manohar Prabhuji, for correcting me. Please feel free for, as it goes forward, to add your own understanding to what I will be saying, because I'm going to attempt it by due blessings of all the Vaishnavas. So I begin by giving my pranams to all of you. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bibi Govind Swaminiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedant Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Desh Tarine. Om Jnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Prabhu, has Hema joined? I don't think so, huh? I'm here. Very good. Okay, great. I was going to send you a reminder. Good to see you, Hema. Hema was with us in Gurugram. Very, very nice devotee who was in Sri Lanka. And then she moved to Gurgaon, where we had her association for 2 years. And now she's in Bombay with all of you. So I'm very happy that she is now with His Grace Gopi Manohar Prabhu. She's at the right place. So I was told to speak on 2.54. And when I started reading Prabhupada's purport for this, I realized that there's a lot of history to reach till 2.54. So to start abruptly for me will be a little difficult. So I beg forgiveness and I ask your permission to just revise it very quickly so that I'm able to connect the sequence in my own mind. So like Prabhupada has very aptly titled chapter 2 as Contents of the Bhagavad Gita Summarized. And therefore, there are some 72 verses in this chapter. It is the longest chapter, I think, of the Bhagavad Gita. And the entire concept of the Bhagavad Gita has been summarized so soon in the dialogue between Arjuna and Lord Krishna.
So it's very important to get this chapter 2 ironed out nicely. It will help in our understanding as the other chapters are subsequently built on this foundation. So, chapter 1, of course, was just a preliminary where we saw of all the armies are getting together and everybody is getting together to start the war. And in chapter 2, plagues start doubting, doubts start plaguing Arjun's mind. So, in the first 10 verses, he's talking about further doubts and about his surrender, because he gave about 5 reasons for fighting: compassion and enjoyment, and the fear of sinful reactions, then restrictions, the destruction of the family, Varna Sankhara, and then indecision. These 5 reasons he was giving Krishna that he will not fight, and he thought that they were very solid reasons. And then Krishna starts demolishing all these reasons. So in the next 20 verses, from about 2.11 to 2.30, Krishna introduces him, just an introduction to Gyan Yoga, where he tries to explain to him that you are fighting not as a body, but as a soul. So compassion for the temporary body is not a valid argument. So he actually quashes his compassion argument by explaining to him, introducing him to Gyan Yoga. And then in the next 8 verses, 31 to 38, he talks about Karma Kand, where he says that you should fight as your prescribed duty as a Kshatriya. So even if you lose, you go to the heavenly planets. And if you fight, then you get the kingdom. So either ways, you are in a win-win situation and you should be doing your duty rather than thinking about being compassionate to people who are not following Dharma. So he gave him an introduction of Atmagyan, Karma Kand. And then from 39 to 53, he talks about Nishkam Karma Yoga. That's the second application of Karma Kand, Atmagyan, where he says that you have to fight, but with detachment, where the result or the outcome of this yudh is not in your hands, and you should not be expecting anything from this, but you should be doing it as your duty and with detachment. So here again, he's countering his enjoyment argument with these verses. And that was till 53. And then we come to verse 54. That's where Arjun is standing now. And so actually in these last 2 verses that have been done, 52 and 53, what Krishna is trying to say here is that Shrotavasya Shrutasya, whatever has been heard and whatever you are going to hear, you will hear in the future, should not be of any more interest to you. Where he says that if your intelligence comes out of this dense jungle of doubts. Yes, Prabhu? Sorry to disturb, Mataji. If you can make it a little bit in Hindi also, there is a lot of audience. Oh, yes. If possible, please, Mataji. Okay, yes, definitely. With English. Hindi and English. Hindi English mix. Prabhuji, yeah. Thank you for reminding me. Yeah. So I'll just read the verse 52 and 53 together. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. And when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. So therefore, what Krishna is trying to tell him is that आपकी जो intelligence है, when it has passed out of, a very good example he has given, that अगर आप घने जंगल में हो और आप वहाँ पे गुम गए हो, you are lost there, and you can see so many roads, so many ways that could be probably leading you out of it. और ऐसे में अगर आप देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है with headlights on और उसमें बहुत qualified लोग बैठे हुए हैं जिनके पास रोड मैप है यहाँ से निकलने का, तो आप कोई भी intelligent आदमी will simply take a lift and get into that bus.
and without arguing further on that नहीं पर यहाँ मुड़ जाए क्या, या यहाँ मुड़ सकते हैं क्या, ये रास्ता ज्यादा हरियाली वाला लग रहा है, यहाँ पे कांटे कम दिख रहे हैं, यहाँ मुड़ जाए क्या. After that, there should be no doubt in his mind that these are the people who have a map to come out of this forest and I should be following them. How? Like vyavasaya atmika buddhi. I think कुछ verses पहले कृष्ण ने बोला था in verse 41 that vyavasaya atmika buddhi, just like a single pointed goal should be there in your mind. I have to get out of this forest. मुझे यहाँ से निकलना है. और उसके बाद जब आप qualified लोगों का साथ आपको मिल जाता है, then an intelligent person will stop arguing and he will stop dilly-dallying and getting into श्रोतवस्य श्रोतस्य. मतलब ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, यहाँ पे ये भी ठीक लग रहा है, वो भी हो सकता है, भगवान ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं. He will come out of this. So the whole thing depends on how we adjust ourselves to the supreme consciousness. कि ये हम सिस्टम फॉलो तो कर रहे हैं, हम बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत सारी पद्धतियां फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका गोल हमें क्लियर नहीं है कि ये हमें इन सब रिचुअल्स को करते हुए कहाँ जाना है, where is it going to lead us, then it is, as Bhagavatam says, shram eva hi kevalam. It is just a boj of all this karmakand activities, all the puja paddhatis. Even bhakti can become a boj. And that is what is happening to Sanatan Dharam currently. Because there are so many rituals, everybody is following rules and regulations, लेकिन वो burden लगने लग गया है, because it is not tuned, fine-tuned to the goal of why it has to be done. So this was the background till 52 and 53. And then after hearing this, when Krishna tells Arjun that you should rise above Shrotavasya Shrutasya, then Arjun asks him, Arjun Uvacha, Sthita Pragnasya ka bhasha, Samadhi sthasya Keshava, Sthita dhihi kim prabhaseta, kim asit vrajet kim. Translation of Arjun Uvacha. Arjun said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? So, पहली बार सुनने पर ये क्वेश्चन बहुत चाइल्डिश लग सकता है. You know that Arjun, the great Dhanurdhar Arjun, you know, the Gudakesh Arjun is asking a question, such a question to Krishna ke kindly let me know कि ये का भाषा है ना, बोलते कैसे हैं, का प्रभाषित, किम प्रभाषित, ये चलते कैसे हैं, how does he sit, what is his language, bolte kaise hai? I mean, this is very, sounds very childish coming from an intellectual person like Arjun. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur समझा रहे हैं that actually these questions are very deep, so much so that from 55 to 72, Krishna is only explaining each one of them. He has taken so many verses to explain each one of them. So these questions are, if we just थोड़ा सा इनको और deeply अगर देखें तो when जब अर्जुन कह रहे हैं that what are the symptoms of those whose consciousness is thus merged in transcendence, का भाषा, तो actually वो ये पूछ रहे हैं कि इनकी characteristics क्या होती हैं. जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, जिनकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होती है, जो एकाग्रचित होते हैं, जिनको लक्ष्य क्लियर है और वो डगमगाते या कंफ्यूज नहीं होते या डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ऐसे लोग दिखते कैसे हैं? एंड सो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बिकॉज हर पर्सनालिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. कहते हैं ना कि जब आप a rich man when he walks into a crowd or in a room, तो आप उसको केवल देखकर, उनके हाव भाव मैनरिज्म्स को देखकर पता लगा सकते हो कि ये रईस आदमी है या एक बड़े ऑप्युलेंट बैकग्राउंड से आ रहा है या काफी ऐशो आराम में पला है. यू नो, यू कैन मेक आउट. सिमिलरली कोई दरिद्र आदमी, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक से
पहचान सकते हो, you know that he has been, मतलब बहुत पिटाई हुई है इनकी लाइफ में, you know, through all his परिस्थितियां, you can make out from his हाव भाव. So इसी तरह अर्जुन is very curious to know that जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, you know, का भाषा, how does he look like, उनके भाव भाव कैसे होते हैं, what is their how is their conduct, basically he is wanting to know. And then he is asking kim prabhaset. Kim prabhaset is even more important, manner of speech, वो बोलते कैसे हैं. प्रभुपाद का फेवरेट एग्जाम्पल रहा है that a fool cannot be located in a crowd. If everybody is well dressed in a room, you cannot make out among them who is the biggest fool until and unless he starts speaking. But the moment he starts talking, he reveals his true identity. फिर उसका कोट पैंट या उसकी जो उसने इतना मेहनत से अपना अपीयरेंस किया है वो सब वॉश आउट हो जाता है, and you can make out his real characteristic. So Arjun wants to know कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी भाषा कैसी होती है, how does he talk? He wants to be able to spot out these people, you know, from the crowd. And then he asks Kim Asit, मतलब यहाँ पर किम आसीत का एग्जैक्ट मीनिंग है how does he remain still, how does he sit. Now actually this Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining that it's not literally about how he's sitting, and sitting means how he is able to control his senses, how is he able to restrain his senses. Only such a person can sit without getting distracted, without getting affected by happiness and distress around him. So how does such a person control his senses? How is he able to restrain them? Kim Asi. And finally, his last question is Kim Vrajet. So if he is able to control his senses, such a person, such a sthita pragya, अगर अपनी senses को restrain कर पा रहा है, तो फिर वो Kim Vrajet अपनी senses को engage कैसे करता है? After he has controlled them, how does he engage his senses? So ये 4 questions हैं जो Krishna then explains 10 I think about 10, 20, 15 इस तरह से verses that are coming next. He explains each one of them in detail. So we will take one of them today, maybe 55 उतना ही मैंने पढ़ा. I was able to prepare. So I'll just read this छोटा सा ही purport है 54 का. So with your permission, Prabhu, can I read it? Yeah, Prabhu. Yeah, Mataji. Sorry. Yes, Okay. Mataji. Okay. So purport of verse 54. As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious also has his particular nature, like talking, walking, thinking, feeling. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, and as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms. Similarly, a man in transcendental consciousness of Krishna, he has specific symptoms in his various dealings with other people. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most importantly, how the man in Krishna consciousness speaks, because speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. So the immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms automatically follow. So speech is the most important, जो हम शुरू से ही भक्ति में सुनते आ रहे हैं कि जो जिह्वा है सबसे हमारी बलवान इंद्री है, because this is the only sense organ that does 2 actions, that of eating and that of talking. So it's very important to control this sevan mukhe hi jihva do. That is why Chaitanya Charitamrita, there's so much stress is given on how to control the jihva. So having said that, we'll go to verse 55. Shri Bhagavan Uvacha
Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atmani evatmana shtushtah sthita pragnastadochyate. Translation: the Supreme Personality of Godhead, Krishna said, O Parth, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. So, Krishna here says, O Parth, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which is because of manogatan. So this word manogatan is very important here in this verse. The whole stress is on manogatan, which is sense gratification. So what is the first symptom of a self-realized soul? Sense gratification. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or Bhakti Yoga has all the good qualities of the great sages. Whereas a person who is not so transcendently situated, he has no good qualification because he is sure to take refuge of his own mental concoctions. तो इसमें यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप शास्त्र की या गुरु परंपरा की का शरण नहीं ले रहे हैं तो आप केवल अपनी बुद्धि का शरण लेंगे. And buddhi is manogatan, one that cannot be trusted, जिस पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. मतलब बहुत effort नहीं डालना पड़ता, आसानी से और स्वाभाविक रूप से you can automatically subside your sense desires if you engage them in bhaktya. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. मतलब तुरंत ही इसमें जैसे ही हमें opportunity मिलती है तुरंत हमें we have to engage in Krishna consciousness without wasting even a microsecond. For this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. So, Prabhupada अपने lecture में बता रहे हैं that the first symptom of such a sthita pragya soul is that he does not make any plans for his prosperity. All of us are day in and day out, from the moment we wake up, we are making so many plans. After this, what shall we do? And then after that, what shall we do? But that does not mean that we stop doing our prescribed duty. That's not what the point is, that you stop planning what you will cook tomorrow and your children and your family are going hungry the next day. That's not the point here. The point here is that without coming to this highest stage, of course, we cannot imitate this. But it simply means that one surrenders completely to the will of the Lord. That is the meaning of a self-realized soul. A sthita pragya does not make any plans for his prosperity. Why? Because our mind is a factory. Every day we churn out millions of plans from this factory. But if your mind is dovetailed to the service of Krishna by serving his the Guru Parampara or the disciplic succession, then you have nothing to do with plan making because everything is taken up by this consciousness. So therefore, for himself, he has
no plan. This is the first symptom of a स्थित प्रज्ञ. अपने लिए वो कोई प्लान नहीं बनाता. ये पहला सिम्टम है. So what does it mean अपने लिए प्लान ना बनाना? It simply means कि हम अपने लिए प्लान नहीं बनाते. We don't make plans for ourselves, but we receive plans from the spiritual consciousness. This should be our position. That while doing our duty, हम अपनी prescribed duties करते हुए, हम whatever plan is given to us as the way the day plans out for us, like man proposes, God disposes. हमारे बहुत सारे plans हैं अपने घर के लिए, job के लिए, family के लिए. So you propose those plans to Krishna, to the supreme will, but उसके बाद जो हमें परोसा जाता है उसे हम accept करते हैं. We receive it and we continue doing our duties by accepting whatever has the higher plan has been made for us. This is the symptom of a sthita pragya, that we don't make any plans, but we receive plans from the supreme consciousness. Why? Because हम position लेते हैं that of a servant. So a servant cannot dictate to the master of the house कि आज मैं क्या काम करूँगा. He simply waits. Or Prabhupada gives a very nice example, that of an apprentice. जैसे इंटर्नशिप्स करते हैं, बच्चे हमारे इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो जब कोई अप्रेंटिस बनता है, जैसे जब कोई लॉ सीखने जाता है तो वो पहले किसी लॉयर के अंदर एज एन अप्रेंटिस बनता है. इनका क्या रोल क्या होता है अप्रेंटिस का? ऑफ कोर्स द फर्स्ट रोल इज टू शो अप ऑन टाइम, टाइम पे पहुंचे, ही रिपोर्ट्स ऑन ड्यूटी ऑन टाइम एंड ही इज वेरी रेगुलर, ही गोज एवरी डे, बट he simply waits for the orders of the superior. जहाँ वो apprenticeship कर रहा है या जहाँ पर वो internship कर रहा है, he simply follows the orders, and by following those orders he is learning. वो सीख रहा है the ways and methods of that the job that he is trying to learn. और देखते ही देखते within a month or 2 months, जितनी देर की भी उसकी apprenticeship होती है, he is able to master that art, and after a while then he can do it independently. But initially he is working completely under guidance and submitting to the will of the owner. So Krishna इस verse में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं that a sthita pragya receives plans but does not try to make his own plans. I must accept the standard plan that is coming down through a channel called parampara. और उस प्लान को एक्सेप्ट करते हुए we continue following our prescribed duties according to the rules and regulations. So this is a very great science. भगवद गीता में तो केवल इसका सिनॉप्सिस दिया है, और श्रीमद् भागवतम में इसको और बहुत एक्सप्लिसिटली समझाया गया है. So Prabhupada gives a very good example. जैसे जो बोटमैन है, जब उसका दिन का काम सारा खत्म हो जाता है तो वो अपनी बोट को पानी से बाहर निकालता है, और पानी से बाहर फिर उसको लेकर आना होता है थोड़ा बीच तक ना, उसको वहां पर पार्क करने के लिए. तो जब वो उसे खींच रहा होता है, उससे बहुत कंकर, पत्थर, कांटे बहुत चुभते हैं उसके पैर में, और वो बोट को खींचते खींचते ये प्रे कर रहा होता है कि जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, जब भी मैं सारी मछलियां बेचकर अमीर आदमी बन जाऊंगा, मर्चेंट बन जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कार्पेट लगा दूंगा ताकि मैं अपनी बोट को वहां अच्छे से बाहर खींच के पैक कर सकूं. यू नो, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी आर सो कंडीशनड इन माया कि हम ये अपने लक्ष्य से अपना गोल हटा देते हैं कि अगर आप रिच मैन बन जाओगे तो आपको कश्ती चलाने की जरूरत ही क्या है, फिर तो आप अपने घर में बैठोगे और केवल डायरेक्शंस दोगे टू द अदर्स टू ऑपरेट दैट बोट. एंड दिस इज वेयर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस गेट डिस्ट्रैक्टेड, है ना, बिकॉज आवर पोजिशन इज लाइक दैट ऑफ दिस फुलिश बोटमैन. You know, because he's so engrossed in his relative problem, जो currently उसकी relative problem है, उसको solve करने में वो इतना engrossed है कि वो अपना permanent solution जो उसको मिल रहा है उससे उसका ध्यान हट जाता है. So the Lord says that mental speculation, the word that is used here is मनोगतान. मनोगतान मतलब मेंटल स्पेकुलेशन. सो लॉन्ग एज हम मेंटल स्पेकुलेशन के प्लेटफॉर्म पे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में ही हैं.
अगर हम बुद्धि की शरण में हैं तो हम मटेरियल वर्ल्ड में ही हैं, क्योंकि बुद्धि मटेरियल है. Our mental faculties also are material, even though it is a subtle body. Gross body से थोड़ा ऊपर है, mind, intelligence and false ego, but ये फिर भी material body है. तो जब तक हम material directions, material instructions के अंडर रहेंगे, we are never going to be happy. So the specific word where whatever we create in our mind is manogatan, mental concoction. And mind is the leader of the senses. The activities of the mind are thinking, feeling, willing. ये सब हम express करते हैं अपनी gross senses के through. But है ये mind के ही directions. और ये सारी sensual activities, they are known as our living condition. इसीलिए when we become free from mental speculation, जब हम मनोगतान से ऊपर उठ जाते हैं, then it is to be understood that we have become a sthita pragya. Then it can be understood that the mental platform is not going to give us actual freedom and happiness, and we cannot submit to the directions of our mind. So one should give up mental speculation completely, or we should be satisfied with what? With the understanding that there is a supreme consciousness. मैं उसका subordinate हूँ, मैं उसका servitor हूँ. I'm subordinate to the supreme consciousness, and therefore मैं अपनी consciousness को, मैं अपनी will को, मैं अपने desires को dovetail कर दूँ या fine tune कर दूँ to the consciousness of the supreme. This point is very, very clearly manifested in the entire teaching of the Bhagavad Gita. क्योंकि अर्जुन मेंटली स्पेकुलेट कर रहे थे शुरू से कि मैं why should I take up fighting, why this, why that, but at the end जब वो अपनी मेंटल स्पेकुलेशन मनोगतान से जब वो फ्री हो गए, then he said yes Krishna, now I have no doubt and I will fight. So I guess till 55 we have covered these two verses, 54 and 55. We have just taken the first question, Ka Bhasha. And the next 56, 57, he will talk about Kim Prabhase, manner of speech, kaisi speech honi chahiye. And after that, 58 to 63, restrain kaise karni hai senses, Kim Asit. और फिर last 64 to 71, Kim Brajet, अपनी senses को engage कैसे करना है. Hare Krishna Prabhu. Please summarize. I'm sorry I could not do justice in Hindi much because English is my natural language of communication. Thank you, Mataji. Very nicely you have started with the prelude. क्या श्लोक का बेस क्या है, and अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि 4 क्वेश्चन हैं. वेरी नाइसली यू पुट अप. मतलब ये मतलब बचकाना ऐसा लगता है कि अर्जुन है ये क्यों पूछ रहा है कि कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, दिस लुक्स हाउ ही वॉक. तो ये तो मतलब एकदम अर्जुन जैसे एक हाई लेवल के व्यक्ति से ऐसा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बचकाना है. बट जो हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, सब जो आचार्य हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल मीनिंग ऑफ दैट, एंड वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो दिस इज द मेन क्रक्स. एंड यू आल्सो 4 क्वेश्चन कैसे डिवाइड किए हैं, वेरी नाइसली सेक्शन किया उनको कि फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक, सेकंड क्वेश्चन है. वेरी वंडरफुल. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. So from my side I don't have any point, but if anybody, the group, he has any points to add on to this topic, please do that. Satyaraj Prabhu, Sarvodaya Prabhu has raised his hand. Yes, Sarvodaya Prabhu. Hare Krishna, Mataji, Dandot Pranam. Thank you so much, Mataji. It was very wonderful session. जिस तरह आपने वो एक एक पॉइंट समझा रहे थे,
एंड वो जो बोटमैन का जो आपने जो दिया था एग्जाम्पल, इट वाज वेरी नाइस माता जी, जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए थे। माता जी यहाँ पे जैसे कि आपने जो प्लानिंग का जो क्वेश्चन, मतलब जो प्लानिंग का एक पॉइंट निकाला था, तो आई हैव वन क्वेश्चन दैट कि जैसे कि हम भौतिक संसार में अगर कुछ भी प्लान करते हैं, तो हाउ वी विल रिलेट टू इन द डिवोशनल लाइफ। जैसे कि अगर मैं जॉब में हूँ एंड आई हैव टू प्लान ऑल दिस थिंग्स, तो हम उसको किस तरह डिवोशनल लाइफ में रिलेट करें माता जी? एक वो पॉइंट समझा नहीं माता जी, तो अगर आप उसको थोड़ा क्लैरिटी करेंगे कि हाउ वी विल रिलेट फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल, वो थोड़ा माता जी। Okay, thank you so much. I'll try to answer the question, but I'll take the help of Gopi Manor Prabhu also, because he's definitely more qualified to answer this. In my understanding, simple understanding is कि काम करना हम नहीं छोड़ सकते, हम सबकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, और यही हमारा पहला धर्म है। स्वधर्म जो हमारा है उसे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। हाउएवर, हम वो प्लान्स बना सकते हैं जो फेवरेबल हैं हमारी भक्ति के लिए, और हम ऐसे प्लान्स ना बनाएं जो हमें समय नहीं देंगे अपनी भक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम ऐसे दोस्त या ऐसी लोगों के साथ अपना कनेक्शन या अपना इंटरेक्शन ज्यादा रखेंगे जो हमें एनकरेज करेंगे ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, वाइल वी कंटिन्यू टू मेंटेन अवर फैमिली, मेंटेन अवर चिल्ड्रन, कीप रिलेशंस विद अवर रिलेटिव्स। लेकिन एक फाइन ट्यूनिंग, एक बैलेंस रखना जरूरी है, ताकि आप कट ऑफ भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी भक्ति और साधना सिंसियरली करके उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे भी जिया जा सकता है। जरूरी नहीं है दैट यू जस्ट हैव टू ईट, ड्रिंक एंड मेक मेरी। सो हम अपने एक्चुअली थ्रू आवर कंडक्ट, थ्रू द वे वी execute our family life, we can be an example that we accept that which is favorable, जैसे जो nectar of instruction में बताते हैं, and we reject that which is not favorable at the same time। एंड आफ्टर वी मेक आवर प्लान्स, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, अगर वो अनुकूल नहीं है हमारे प्लान्स के हिसाब से, उसको हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करें एज द विल ऑफ द लॉर्ड। उसके साथ उग्र कर्म करने की जरूरत नहीं है टू सर्कमवेंट दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए, या किसी एक जगह एक पर्टिकुलर कंपनी में चाहिए, या एक पर्टिकुलर सिटी में चाहिए, आपने अपना पूरा प्रयास किया, अगर आपको नहीं मिली, यू एक्सेप्ट दैट दिस इज द हायर प्लान फॉर यू, that Krishna knows better, that you will be better suited where you are right now. And for mothers, it always happens that the perennial problem is कि बच्चे नहीं कर रहे, husband नहीं कर रहे, सिर्फ हम ही कर रहे हैं। There is also a bigger plan in that. You accept them with their with whatever is their contribution, or whatever is their acceptance of bhakti yoga right now. सो विदाउट फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब जो एक टीका टिप्पणी करने की हमारी आदत है कि क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए, और जो नहीं कर रहे हैं ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रोबेबली दैट आल्सो इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। क्योंकि जो हमें मिल रहा है, जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, ये भी कृष्ण का एक प्लान है हमें ही भक्ति में और आगे सेवा में कार्यरत करने के लिए, हमें उसमें और हाउ शुड आई से इट, सिंसियरली परिश्रम करने के लिए। सो वी विल कंटिन्यू टू डू ऑल आवर ड्यूटीज, बट वी विल डू इट अंडर गाइडेंस ऑलवेज ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र। विम्सिकली नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली गाइडेंस लेते रहना है ऑफ सीनियर वैष्णवास, ऑफ आवर गुरु, ऑन हाउ टू गो अबाउट इट। और इस तरह से गाइडेंस के अंदर सिर नीचे झुका के शास्त्रों के अनुसार काम करते करते वी विल रियलाइज वन, एक ऐसी स्टेज पे होपफुली हम पहुंच जाएंगे वेयर दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट अस। द वर्ड दैट ही यूज्ड इज श्रोतवस्य श्रुतस्य से अफेक्ट होना हम बंद हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, मतलब एटलीस्ट हम डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे और हम एक सिंगल पॉइंटेड मिशन और गोल और एंथुजियाज्म के साथ we will be able to execute the principles of bhakti yoga. Gopima Prabhu, please you can better this answer.
Actually, Mataji, you have left no room to comment anything. Very wonderfully answered. और यही होना चाहिए हमारा अप्रोच कि हम लोग लाइफ में हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते, और वो हम लोग भगवद गीता में यही देखते हैं। अर्जुन को भी ये नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ता हूँ, तुम आराम करो, नहीं, तो युद्ध करना है। वी हैव टू वर्क, तो काम तो हमको करना ही है। बट जैसे वो आपने श्लोका कोट किया, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से संकल्प वर्जन, तो ये देखना है हम लोगों की अपनी भक्ति में हमारे लिए फेवरेबल क्या है। जब भी हम लोग जब कोई मटेरियल प्रॉब्लम्स में होते हैं, उसके 2-3 सोल्यूशन होते हैं, तो उसमें से वो 3-4 सोल्यूशन जो भी अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट जो मुझे भक्ति की तरफ ले जाएगा, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, मुझे वो चूज करना है। जैसे लास्ट टाइम ब्रजी जना प्रभु जब आए थे, तो उन्होंने किसी का एग्जाम्पल दिया था, तो वो बोल रहे थे कि मतलब कि जो फ्रेंड थे उनको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा था दूसरी जगह पे, एक हायर पोजीशन विद गुड मनी। तो उन्होंने अपने गुरु से, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूछा कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, तो व्हाट शुड आई डू। तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने यही कहा कि क्या तुम्हें वहाँ पे भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो सोचने लगे, नहीं गुरु महाराज, काम बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं जल्दी आ जाता हूँ, वहाँ पे मुझे देर तक बैठना पड़ेगा, प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सीधा बोला छोड़ दो, बोला अभी जहाँ पे हो वहीं पे रहो। तो वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर्स इन मटेरियल प्रॉब्लम। और गुरु होते ही इसीलिए कि हम लोग जो है उनका गाइडेंस लें, हम लोग उनसे सीखें कि अभी अभी ये प्रॉब्लम है, मैं क्या, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है इतना विकसित नहीं है कि हम लोग कुछ अच्छा डिसीजन ले सके। इसीलिए गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 चीजें हम लोग को दी जाती हैं, एंड इसका हेल्प लेके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं लाइफ में। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि यूज करेंगे हम लोग, तो अगर हम लोग शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र अगर इससे गाइडेड नहीं है हम लोग, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम लोग भक्ति से डिविएट हो जाए हम लोग, जो हमको नहीं चाहिए। लेकिन जो भक्त होगा वो हमेशा उसका फोकस ये रहेगा कि मेरे लिए भक्ति में सबसे बेस्ट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि उसको अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा पोस्ट मिल रहा है, तो वो जो अभक्त होगा वो तो बोलेगा छोड़ो, अच्छा है चलो, मतलब 1 घंटा तो अटेंड करता था क्लास, वो छूट जाएगा मेरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो ये सोचेगा कि मेरा अभी 1 घंटा मिल रहा था, मैं इसको 1.5 घंटा या 2 घंटा कैसे करूँ। तो दैट इज ऑलवेज दैट। और हमेशा जो प्रायोरिटी है हमारा वो भक्ति होना चाहिए। कैसे मैं भक्तों का संग कर सकूँ, मैं भक्ति कर सकूँ, बाकी सब जो चीज़ें हैं वी हैव टू कीप इट, उसको असाइड, दूर रख के हम लोग को हमेशा भक्ति को प्रायोरिटी रखेंगे हम लोग, गोल देन वी मूव अहेड इन द स्पिरिचुअल डायरेक्शन। नहीं तो हम लोग फिर बाकी लोगों की तरह, जो भेड़ बकरियों की तरह जो मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, वी विल गो इनटू दैट स्ट्रीम जो हमको नहीं चाहिए। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, थैंक यू। सरुदेव प्रभु, your question answer. Yeah, Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Thank you Mataji and Prabhuji. माताजी, आपने वो एक सेंटेंस बोला था कि we don't make plan but we receive the plan. That means उसका मतलब यही हो गया कि we always receive a spiritual plan like that, माताजी। मतलब हमें प्लान नहीं करना। इसमें प्रभुपाद वार्न करते हैं दैट आर्टिफिशियली हमको ऐसे नहीं करना है कि अब मैं कोई प्लान नहीं बनाऊंगा, है ना। जैसे इनिशियली इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ भक्ति हम कहते हैं कृष्णा जो भी करना है तू ही कर, है ना, मेरे तो बस का है नहीं। बट प्रभुपाद सेड यू हैव टू टैक्स योर ब्रेन on how you can progress in bhakti. You cannot just say ab sab kuch Krishna hi karega. He is not your servant. You are trying to become his servant. So you still have to tax your brain on how to come out of this situation. And it is about material and spiritual both. क्योंकि अगर आप मटेरियल लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर दोगे अकॉर्डिंग टू शास्त्र, तो वो स्पिरिचुअल बनेगी। नॉट दैट कोई स्पिरिचुअल लाइफ सेपरेट है फ्रॉम मटेरियल लाइफ, ये इंटरट्वाइंड है। मटेरियल ही स्पिरिचुअल है। सो इट्स नॉट कि मटेरियल लाइफ में ऐसे करूंगा, उसके बाद घर आऊंगा, फिर मैं स्पिरिचुअल लाइफ करूंगा। दैट डज नॉट वर्क।
इवन ड्यूरिंग द डे जब आप अपना जॉब भी कर रहे हैं या माताएं अपना घर चला रही हैं और जितनी वो दुनियादारी की बातें कर रही हैं, ऑल दैट ऑल्सो हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द कृष्णानुवर्ती नाम, according to the codes of Krishna, according to the rules of Krishna, according to the rules of Shastra, of Dharma. You know, इतनी बड़ी मनु संहिता लिखी गई on how to behave, ये सब हमारे लिए ही तो दिया था। रिश्तेदार में कैसे करना है, लॉ अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो सेटल कैसे करना है, जजमेंट कैसे करना है, सारी प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक बातें ही तो बताई गई है मनु संहिता में। बट इट वाज कृष्णानुवर्ती नाम, अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का ही ये जगत है, ये सारी वस्तुएं कृष्ण की ही हैं। हम आए हैं उनके घर यहाँ रहने के लिए, तो तमीज से रहना है, यहाँ पे शिष्टाचार से रहना है, सदाचार से रहना है, उनको पूछ पूछ के करना है। आपका ये यूज कर ले, ये आपके लोग हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार कर ले, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। हम यहाँ पे नौकर हैं, तो नौकर बन के रहें, उस मेंटालिटी के साथ रहें, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑटोमेटिकली नौकर की अगर मेंटालिटी आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। हमारे घर में जो सुबह काम करने आती है वो इस मेंटालिटी से तो नहीं आती कि आज मैं जाकर बोलूंगी कि चलो मैं आज ये काम करूंगी, आई विल गो एंड टेल देम। वो इस मेंटालिटी से तो नहीं आती। शी कम्स विद द मेंटालिटी, मैं उनको जाके पूछूंगी आज क्या करना है, इस मेंटालिटी से आती है। और हम रखते भी उसको तभी है कि जो पूछे मेरे हिसाब से घर साफ करे, नॉट के वो अपने अपने मन से मेरा घर साफ करके जाए। सो उनको देख, मतलब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ दैट जब भी मुझे समझ नहीं आता है ना, मैं अपने घर में जो काम करने आ रही हूँ उसको उसकी जगह अपने आप को डालकर समझने की कोशिश करती हूँ, क्या मैं ऐसे जी रही हूँ? एम आई रियली ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा? तो खैर बहुत दूर की बात है। एम आई इवन ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ माई गुरु महाराज और द सीनियर वैष्णव्स अराउंड मी? क्या मैं इस हिसाब से जी रही हूँ? यू नो, एंड then automatically when you start wearing this thinking cap and you're constantly under guidance, पग पग पे पूछ सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं एक बार बार कैसे पूछूं। वैष्णव, सीनियर वैष्णव्स like it when you come to them again and again, even with small queries कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, और ऐसे वो ठोक बजा के हम ठीक हो जाते हैं। है ना, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ठोका, एक वैष्णव ने ऐसे ऐसे बताया, दूसरे वैष्णव ने ऐसे ऐसे बताया, यू नो, योर गुरु महाराज दे विल कीप ऑन गाइडिंग यू। जैसे हम गाय को नहीं चराते, भेड़ को। अभी अभी हमारे गुरुग्राम में वो आई थी ऑल इंडिया पद यात्रा, जो पूरे इंडिया में 32 साल से पद यात्रा कर रही है, एंड 6 साल हो गए हैं उनको। दे हैव कवर्ड सर्कमएम्बुलेटेड इंडिया 6 times in 32 years। तो वो गुड़गांव में आई थी, तो आई ऑल्सो स्पेंड 1 full day with them। मैंने देखा बैल कैसे चलता है, यू नो, ही इज द, और उनका भाव ऐसा था, वो मुझे कह रहे थे माताजी हम कहाँ हैं वैष्णव, ये बैल है रियल वैष्णव। देखो दे आर एंटायरली ऑलवेज अंडर, मतलब दे आर ऑलवेज अंडर कंट्रोल, अंडर डायरेक्शन। तो वो बैल को उन्होंने निकाला उस हल से, वो रथ जो चल रहा था, गौर निताई का, गौर सुंदर बोलते हैं उनको। तो बैल को निकाला, उसको खाना वाना खिलाया। उसके बाद जब उनको बैल को 5-6 घंटे का रेस्ट दिया, तो फिर से रथ यात्रा निकालने का टाइम हो गया। तो उन्होंने बस बैल के सामने जाके खड़े हुए, उस पर कपड़ा डाला, इमीडिएटली बैल समझ गया, अपने आप आया। वो जो बैलगाड़ी रथ का वो पड़ा हुआ था, स्पोक जो होता है, उसके अंदर आके खुद ही खड़ा हो गया, खुद ही अपना सिर झुका लिया कि हाँ अब जोत दो मुझे, मेरे सिर में डाल दो। खुद ही अपना झुका लिया सिर कि अब मेरे अंदर नकेल डाल दो, मेरे ऊपर कर दो, और वो खड़ा हो गया। एंड देन ही वाज वेटिंग कि यू हिट मी, कहाँ टर्न करना है मुझे, लेफ्ट या राइट, है ना। और फिर अब यू कैन कंपेयर, वी कैन ऑल कंपेयर कि ऐसा बनना है और हम कहाँ हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब है he was under direction at all times and he was willingly taking direction। तो वो कर पाया ना, वो पूरे इंडिया का सर्कमएम्बुलेशन सभी तीर्थ स्थान कर पाया। सो द सिंपल, बहुत सिंपल वे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी एडवांस्ड, मुझे इतना ज्यादा नहीं शास्त्र की दाव पेच आते, बट मेरी प्रैक्टिकल माइंड को ये समझ में आ रहा है दैट वर्क अंडर गाइडेंस, work under direction but not whimsically। You will not go and ask your mother, father, भाई बहन, relatives जिनसे आपको बहुत प्यार है, लेकिन ये spiritual guide नहीं है। spiritual, अपनी लाइफ जीने के लिए आप spiritual guidance spiritual devotees से लेंगे, from advanced वैष्णवास लेंगे,
इनके साथ प्रेम और स्नेह का संबंध रखेंगे, लेकिन गाइडेंस आप किसी से नहीं लेंगे एक्सेप्ट गुरु, साधु एंड शास्त्र, वो भी जिनका एक जैसा मूड हो, otherwise it is conflicting. So follow only the mood of your Guru Maharaj and of your God brothers and God sisters who follow that same Guru. So then there is no, you are streamlined, we are all in the same line, and समझने में गलती नहीं होगी, confusion नहीं होगा, and इस तरह से ही guidance ले लेके you will be able to make your material life spiritual. I mean, that is my understanding. Prabhuji, you can please guide further. वो भी मेरे को आर्ट्स में देख रहा था तो उसी से समझ गया मैं, बहुत अच्छा आंसर है। कौन से हार्ट किधर है? आई एम नॉट गेटिंग। जस्ट अ मिनट। अच्छा, मे बी आई डोंट नो, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी ऑन स्क्रीन? तो मतलब व्यूअर लाइक, जैसे हम लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में देते हैं थम्स अप, हार्ट, तो वैसे इसमें भी ऑप्शन है। तो एवरीबॉडी वाज जस्ट गिविंग हार्ट। आई थिंक एवरीवन लाइक्ड इट एंड बहुत अच्छा एग्जांपल बताया माता जी। बेल का जो बेल है, रियली ही हैज सो मच पावर। तो चाहे तो मतलब खाली वो एक ऐसा सर हिला दे तो आदमी को कहीं का कहीं फेंक देगा, बट ही इज सो मच इन अंडर कंट्रोल, वो इतना कंट्रोल में रहता है। और जैसे जो बेल का आपने एग्जांपल दिया, रियली वाव, इतना मतलब डिसिप्लिन होगा कि जैसे ही उसने उठाया तो समझ गया मुझे, वो खुद जाके वहाँ पर खड़ा हो गया और बोला तो इट्स सो नाइस। बट वी, हमें कुछ भी शक्ति नहीं, बट ईगो हमारे में इतना है, कोई कुछ जरा सा बोल दे या बस टेढ़ी आंख से देख ले, इसका हिम्मत कैसे हो रहा है मुझे देखने का, इसका हिम्मत कैसे है मुझे बोलने का, मतलब डोंट हैव एनीथिंग, स्टिल देयर इज सो मच ईगो। बट if you see bull, इतना पावर होने के बावजूद इसको डिसिप्लिन, एंड दैट्स व्हाई वेरी नाइसली सेड कि वो इतना पूरा 6 बार पूरा पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, उसको हमने इंडिया का, और उसने इतना दर्शन किया। तो हम लोग में भी we all have some extraneous power that we use service of our spiritual master and spiritual master. Thank you Mataji. एंड आपको याद होगा प्रभु, शुरू में जब ये रथ ये शुरू हुई थी, बुलॉक कार्ट पद यात्रा, और जो पहले 2 बुल्स आए थे तो प्रभुपाद ने उनको देखते ही कहा था, दिस इज देयर लास्ट लाइफ, दे आर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। सो दे विल क्रॉस अस, यू नो, इट्स कहने को वो जानवर है, लेकिन हम स्ट्रगल करते रह जाएंगे। लेकिन पशु योनि इसीलिए कहते हैं कि इंसान भी पशु है। इन अ वे इट्स गुड कि हम पशु प्रवृत्ति है, बिकॉज एटलीस्ट वी कैन फॉलो डायरेक्शन। अगर हम पशु जैसे बन जाएं, ये एक चीज कॉपी कर लें टू फॉलो डायरेक्शन, तो लाइक प्रभुपाद सेड, दिस इज देयर लास्ट लाइफ, दे आर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। It was a very nice experience with that all India Padayatra. Very humble devotees. Yeah, thank you Mataji. Sarvade Prabhu, I hope you are satisfied with the answer. Yeah. Yes, Mataji and Prabhuji. Thank you so much, Mataji. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड थैंक्स वंस अगेन माताजी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। Yeah, Satyaraj Prabhu has raised his hand. Satyaraj Prabhu, can you put on your camera and ask? हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटन क्लास। और माताजी, मेरा जो क्वेश्चन था वो भी वही था जो अभी सर्वोदय गिरधारी प्रभु ने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज माय क्वेश्चन। एंड लाइक उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा एंड माताजी आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। और जैसे आपने जो बेल का एग्जांपल दिया माताजी, तो वैसे ही मैं जब भी आप बोल रहे थे तभी आई जस्ट थिंकिंग अबाउट लाइक मायापुर धाम में माताजी हाथी है जो श्री राधा माधव जी को लेके उनका ये निकलते हैं 6:30 अराउंड, और वो यात्रा रहता है छोटा सा पद यात्रा टाइप, एंड कीर्तन, दे आर लीडिंग कीर्तन, और फिर हाथी जी है, उनका नाम भी मैं भूल गया। तो वो उनको जब एक खीला लगा था, एक नुकीला खीला, और उससे बाद में पता चला कि उससे
उनके पाँव से खून आ रहा है जस्ट, लेकिन उन्होंने ना जब तक भगवान का मंदिर ने, राशि श्री राधा माधव जी का जब तक मंदिर नहीं आया तब तक उन्होंने नीचे नहीं झुके हो. So that is a like वो मैं like I'm just meditating on that instance. तो जैसे आपने बताया माता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. एंड माता जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि मेरे घर में सब लोग आज क्लास सुन रहे हैं. एवरीबॉडी इज लिसनिंग क्लास, माय मम्मी, माय फादर एंड माय वाइफ. तो थैंक यू माता जी, आपने हिंदी भी कवर किया, तो थैंक यू सो मच माता जी. एंड वन मोर पॉइंट, आज जैसे आपने बताया कि आतिथ्य देवो भव, जैसे आपने बताया, तो लाइक ऑल वैष्णव लाइक हम लोग खाली बोलते नहीं. दैट परमेश्वर प्रभु ने एक लाइन बोला था उनके लेक्चर में कि लास्ट मींस लाइक 3 weeks बैक परमेश्वर प्रभु हैज गोपीनाथ प्रभु हैज इनवाइटेड परमेश्वर प्रभु. सो ही सेड लाइक जो वैष्णव है he doesn't only speak, he imbibe those things and those value in our life, own life, and then he showed. जैसे अभी आपने वो आंसर में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी, और आपने बताया भी कि आपने बताया ना कि आतिथ्य देवो भव. So that means you imbibe and you guide us like how we should treat. So thank you so much माता जी for प्रभु जी, your थैंक यू टेलिंग मी. आपके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं. प्लीज आई वांट टू गिव माय प्रणाम्स एट देयर फीट, एंड आई वांट टू बेग फॉरगिवनेस बिकॉज आई गेव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कि अपने फैमिली की नहीं सुननी चाहिए. You know, had I known कि वो सुन रहे, I wouldn't have said that. So I'm very sorry. I want to beg forgiveness, but this is not what I meant. And हमारे बुजुर्ग हैं तो हम हैं. We are because of them, and we are very fortunate. अगर हमारे बुजुर्ग अभी भी हैं हमें गाइड करने के लिए. So actually we are the बैल और वो हमें जोत रहे हैं. वो रथवान है और हम बैल हैं. So you are very fortunate that you know, you are still under their guidance. yeah. So thank you once again Mataji, and thank you Gopi Prabhu for inviting Mataji. Thank you so much. नमस्कार. नमस्ते माताजी. She is Nandini Mataji. She is very elderly Mataji. She is retired railway officer, and she just once we invited one guest speaker, so with him she had joined, and that is the day उनके साथ आज जो जुड़ी है सबसे जो continuous है, तो she is always there for each and every class. So, and she gives lots of nice input also. So she, yesterday first time we saw her, one more skill she does, very nice kirtan also. So that's wonderful. Okay, Jai. Such an eminent group of people in your class, Prabhu. I'm really blessed to have the association of all of them. And somebody has raised, and I can't see, there were 2 people, one was Satyaraj. Anybody has raised hand? Samir Prabhu. Samir, yeah, Samir Prabhu ji. And just to introduce Samir Prabhu, if you doesn't know, he is brother of Subal Prabhu. Oh, yeah, I was about to ask because it's written Raje, and Subal Prabhu is also writes Raje, no? हरे कृष्ण माता जी. Yes, Samir. प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण माता जी. एक्चुअली मतलब आप अभी इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो मेरे को एसोसिएशन के बारे में जस्ट एक एक्सपीरियंस अभी बताना था. जस्ट मतलब मेरे बेटे के साथ हो गया था. मतलब मेरा बेटा जस्ट रिसेंटली वो थोड़ा मतलब कृष्णा भक्ति में इन्वॉल्व हो रहा है. मतलब मैं थोड़ा सा उसको हर बार उसको बोलता हूँ ना, पीछे लगता हूँ. But slowly he has himself he's himself getting more and more attached to Krishna conscious activities. अभी जब भी वो पिकनिक वगैरह जाता था तो जाने के पहले हर बार मुझे पूछता था. अभी इस्कॉन यूथ फोरम थाना में एक पिकनिक ये किया था उन्होंने. यूथ फोरम इस्कॉन की यूथ फोरम है, वो पिकनिक कुछ अरेंज किया था सैटरडे संडे, आज और कल में. तो विदाउट आस्किंग मी ही एनरोल्ड, and he knew I will be very happy that he is going there.
और आज ही उसका मैसेज आ गया था कि कल मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन उसने मेरे को मैसेज किया कि कल ही डिड 25 राउंड्स। आई वाज एब्सोल्युटली सो हैप्पी। मैंने बोला एसोसिएशन का इतना बड़ा फायदा हो गया। तो उसका नाम कौशल है। तो बोला इट्स रियली वेरी गुड दैट यू डिड 25 राउंड्स। तो एसोसिएशन का क्या फायदा होता है? दैट्स मतलब एक्सपीरियंस। हरे कृष्ण। How old is he, Prabhu? He is 24, but just recently he got मतलब kind of मतलब जैसे मैं अभी रिसेंटली ये हो गया हूँ, प्रभु जी के साथ जुड़ गया हूँ, आप लोगों के साथ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के साथ जुड़ गया हूँ। दैट्स द रीजन मतलब ही आल्सो हैज गॉट इन्वॉल्व जस्ट ऑफ लेट। बट मतलब वो घर पे करता है 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड, एक बार 16 राउंड भी किया था, बट दैट वाज नॉट रेगुलर। लेकिन जस्ट बिकॉज ही वेंट विद दोज डिवोटीज and because of their association he could do 25 rounds. So I was so happy about him. Hare Krishna Mataji. So that was the experience which I wanted to share. Yeah, thank you so much for sharing. And I think that's a Hare good Krishna. idea for all of us to send our children to such programs. Yene kene prakar hai na. Exactly. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Gopi Manor Prabhu is saying something? Yes. Sorry. Yeah, Satya, give me 1 minute. एक्चुअली समीर प्रभु उनका जो बेटा जो है वो समीर प्रभु को फॉलो कर रहा है। समीर प्रभु इज वन जो डेली कम से कम मिनिमम 48 to 50 राउंड करते हैं और एकादशी पे कल उन्होंने 108 राउंड किए थे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, बेटे ने 25 राउंड किए तो इज फादर्स फुटस्टेप। तो दैट्स वेरी नाइस टू हियर कि बहुत अच्छा मतलब समीर प्रभु और उनका बेटा वेरी नाइसली कल्टिवेटेड। So we pray at the lotus feet of all the Vaishnava Acharyas कि ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़े। Yeah. Yes, Satya. प्रभु जी यही पॉइंट मैं बोलने वाला था और आपने ही बताया। अच्छा। हरे कृष्णा। अच्छा, और आप कह रहे हैं समीर प्रभु कह रहे हैं कि ये अभी अभी आए हैं भक्ति में। मुझे तो लगता है ये मेरे से तो बहुत आगे हैं। मैंने तो कभी 100 राउंड्स तो कभी किए ही नहीं। You know, it is so many years and we are still where we are, and Sameer Prabhu has daily The association is it is just because of Krishna's mercy and because of the devotees association उन आप लोगों का blessings है। Yeah, it's the purity of your heart also, Prabhu. So please bless us कि हम भी ये कर पाए। मतलब आप जैसी इनोसेंट और शिथिल जब होता है हृदय तब ये कर पाता है इंसान, यू नो। तो वो अभी हमें नहीं है मुझ में, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो काइंडली ब्लेस मी ऑल्सो कि मैं कभी ये कर पाऊँ। Okay, Hare Krishna. Anybody else? Any other question? You have time, Mataji, na couple of minutes. Yes, I have time. किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? Maybe Hema Mataji can say something. She's in our group, but she's very dormant. Recently, she started interacting. Hare Krishna. अजी काफी देर से काफी टाइम तो इनको पता नहीं चला कि लिंक कहाँ है, बट नाउ आई थिंक शी नोज कि आपके ग्रुप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक परमानेंटली डाला हुआ है, तो वहीं पे जाकर कभी भी लिंक ले सकते हैं। हेमा? यस माताजी, प्रभु जी, गोपी मैंने प्रभु जी मैंने आपको पहली बार ही देखा है आज स्क्रीन पे। धन्यवाद प्रभु जी। ग्रुप में साधु संघ ग्रुप में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आती रहती है एंड एवरीबॉडी सो लाइक इन्वॉल्व है इसमें। तो रियली वेरी गुड इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस ग्रुप, आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस ग्रुप। तो समटाइम्स में साधु संघ का जो एक आध मैसेज अपने नंदिनी भक्ति वृक्ष में भी कॉपी पेस्ट होता रहता है मेरा। एंड विशाखा माता जी तो 2 साल पहले विशाखा माता जी जब मिले, आई वॉज सो ब्लेस्ड एंड इट्स रियली कृष्णाज प्लान। इन्होंने मुझे, कृष्णा ने ही मुझे इनसे मिलाया। एंड इनका बेसिकली माता जी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, इट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। मतलब
सिर्फ वो भगवत गीता स्पिरिचुअली कैसे करनी है या फिर वो नहीं पढ़ाते, वो साथ साथ में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमें समझाता है। दैट्स व्हाई जो नंदिनी सप्तवृक्षा ग्रुप की जो लेडीज है ना, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर दैट शी इज माय शिक्षा गुरु एज ऑफ नाउ। तो रियली हरे कृष्णा। अभी जो आप आई वाज गेटिंग लाइक इमोशनल कि हमने हमेशा आपको नंदिनी सप्तवृक्षा ग्रुप में बोलते हुए सुना है, अदर बैक जैसे आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है आज बिकॉज ऑफ गोपी मनोहर प्रोविजन, आप जो और एवरीबडी इज लाइकिंग योर टॉक, आपको हार्ट्स आ रहे हैं एंड आपको एप्रिसिएशन हो रहा है, तो आई एम गेटिंग लाइक इमोशनल जैसे फीलिंग आ रही है मेरी। वेरी हैप्पी। थैंक यू हेमा फॉर योर लव। ऐसे दोस्त कहाँ बहुत किस्मत से मिलते हैं, यू नो, पीपल लाइक हर हु आर सो सिंसियर एंड सो लविंग, एंड ऑल ऑफ अस अल्टीमेटली जस्ट वांट लव प्रभु, इजंट इट? हम सब उसी के लिए, दैट एल्यूसिव लव के पीछे ही तो, एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही तो ढूंढ रहे हैं। सो आई थिंक मर्सी है गुरु महाराज की और वैष्णव्स की, आप सबकी, that we have a good group of very sincere and intelligent ladies, I would say. Very, very nice, very sincere. So we are missing Hema कि अब ये बॉम्बे चली गई है, but I'm sure कि you know, now that she is in this group, she will continue her journey, और उसको association मिल गई है ना। वो she was also worrying a lot कि मैं वहाँ जाकर कहाँ कनेक्ट करूंगी, क्या करूंगी, यहाँ तो हम लोग मिलते रहते थे, बट अब हमें चिंता नहीं है हेमा की। शी इज इन साधु संगा। थोड़ा सा बिजी रहती है, मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया माता जी को आए, भागवत में नहीं है तो संडे को आए, संडे को नहीं तो आफ्टरनून में आए, तो अभी आप बोलिए उनको तो ठीक नहीं, stay in touch with us now. I'll connect Prabhuji. Definitely I'll connect. Definitely Sunday classes I will definitely. संडे आफ्टरनून शायद सूट हो जाएगा, मतलब संडे प्रॉब्लली 2 क्लासेस होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सो यू कैन चूज एनी वन। Yes, definitely. थैंक यू। माता जी भी थोड़ी सी बिजी थी, बीच में कोई मैरिज फंक्शन था उनके घर में, तो बिजी। एक्चुअली दैट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। इनके देवर या जेठ हेमा? हाँ वही थे, बड़े देवर। बड़े देवर, देवर के की बेटी की इन्होंने शादी की। उनको मतलब देवर देवरानी आर नो मोर, सो शी हैज अडॉप्टेड देयर 3 daughters एंड दे आर लिविंग विद हर, और उनमें से एक की इन्होंने शादी की जिसमें ये बिजी थी। इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना, एंड नाउ दे आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर द शादी ऑफ द अदर वन, यू नो, सो इट्स दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और एक बात मैं इनके बारे में और बताना चाहूंगी कि जब इनके घर में शादी थी, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और पूरा काम जिम्मेवारी इनकी, तो इन्होंने पता नहीं कैसे ये प्रण ले लिया कि मैं 32 राउंड करूंगी रोज विद दैट शादी का काम। और इन्होंने किया। इन्होंने वो किया विद ऑल दैट घाई एंड गर्दी जैसे बोलते हैं इन बॉम्बे लैंग्वेज। उसमें इन्होंने वो 32 राउंड रोज किए, एंड शी केप्ट हर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इंटैक्ट, जबकि रिश्तेदार सब मीट ईटिंग भी थे, तो इन्होंने उनको भी सेटिस्फाई किया, लेकिन अपने इन्होंने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स रखे, ऊपर से 32 राउंड्स किए। सो दिस इज, जैसे पूछ रहे थे अभी सत्यराज प्रभु और बाकी प्रभुज, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाउ कैन वी डू दिस? सो yeah, it's an inspiration to me. Really nice to hear about माता जी। ये एक कुछ मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग कि मतलब आज के ज़माने में कौन देखता है अपनों को, बट इवन माता जी इज टेकिंग केयर ऑफ द 3 kids, रियली वंडरफुल एंड रियली अमेजिंग। थैंक यू हेमा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, is of Krishna's mercy and blessings for our parents जो है, उनकी जो बेसिक ब्लेसिंग्स होती है वही हमें ताकत देती है सब करने की। और हेमा की वजह से इनकी सिस्टर अर्चना भी अब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गई हैं, और बहुत अच्छे से वो भी जुड़ गई हैं, थैंक्स टू हेमा। शी इज इंस्पायर्ड हर फैमिली आल्सो टू टेक इट अप। और हाँ, और एक चीज बोलना चाह रहा था, मैं अभी तक नहीं जानता नहीं था, आपने जब अभी लास्ट टाइम जब बात करा तब आपने बताया कि
माता जी भी महाराष्ट्रियन है, तो दिस वाज शॉक फॉर मैं। अभी तक मैं उनको मैं ये सोच रहा था चौहान मतलब वो दिल्ली वाली है, वो इसमें मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। बोला ये तो अपने ही भाषा वाले हैं, हाँ, मालवणी है आम्ही प्रभूजी। या वो कैसे बोलते हैं मराठी मुलगी। या ओके, सत्यराज प्रभु, यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो माता जी थैंक यू। हेमा माता जी का और एक एग्जांपल 32 राउंड्स कर रही है, तो वी आर गेटिंग इंस्पायर बाय हेमा माता जी ऑल्सो। और हमारे प्रभु भी इतने राउंड्स कर रहे हैं, 108 राउंड्स ओ कृष्णा। और माता जी अभी कल क्लास में मैं गया था, हमारे क्लास में भक्ति शास्त्री क्लास, तो कल ही मेरे एक फ्रेंड मित्र है उधर, रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया भक्ति शास्त्री, एंड उन्होंने 192 राउंड्स किए एकादशी। तो सुबह वो 1:30 कुछ उठे और ही स्लेप्ट ओनली 2 hours, 22 hours he is doing japa. So I just shock, and like कि 192 rounds ही उन्होंने भी पहले 64 राउंड्स पहले चालू किया, 16 देन 32, एंड धीरे 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 विद इन 3-4 years, एंड लाइक वो अभी बहुत क्लोज हो गए मेरे से। भक्ति शास्त्री क्लास में आते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे रिवील किया, और फिर बाद में उन्होंने हमारे जो टीचर है मनोहर प्रभु मनोहर करके है, उनको भी बताया, एंड लाइक say like 22 hours like he is doing japa on Ekadashi. So I mean really inspiration. तो थैंक यू विशाखा माता जी कि आप हेमा माता जी को आप इंस्पिरेशन दे रहे हैं, एंड आप हमें भी ऐसी जो इंस्पिरेशन अभी मिल रहा है, जैसे हेमा माता जी है, हमारे प्रभु जी है, तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. We are all getting inspired from each other. And that is the beauty of Sadhu Sangha. Really, 192 rounds is really something amazing. Actually, Haridas Thakur ji, he used to do 192 rounds daily. I was about to say that. के तो हरिदास ठाकुर मिल गए। तो उनको एक बार क्लास के लिए बुला दो, वो 17 उनसे सुनने के लिए। ओके। एंड ऑल्सो जैसे हेमा माता जी के बारे में बताया, तो हेमा माता जी, हम लोग नॉर्मल ऑफिस का काम होता है तो हम लोग 16 माला करने में रोते हैं, तो उन्होंने तो शादी का जो इतना पूरा तैयारी करना, इतना मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है एंड इतना काम रहता है कि टाइम नहीं मिलता, बट इन दैट शी हैज सेड कि आई विल डू 32 राउंड्स, रियली अमेजिंग, वेरी बहुत अच्छा है। या मतलब it's very nice to know this facts about Hema Mata ji. Amazing. And I think Hema Mata ji आपको भी अलग नहीं लगेगा, you will feel at home because बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप में, महाराष्ट्र नहीं है, सत्यराज प्रभु है, समीर प्रभु है, सुजाता माता जी है जिन्होंने हाथ उठाया है, सानिका माता जी है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। हम लोग एक मराठी क्लास शुरू कर देते हैं। Sure, Prabhuji. Definitely. Yeah. सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक पूछना था हेमा माता जी से कि इतना बिजी शेड्यूल होके भी माता जी ने कैसे अरेंज कर दिया, तो प्लीज इस पे ऊपर हम लोग को थोड़ा सा एनलाइट कर दोगे क्या माता जी? क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा भी काम आता है तो हम लोग प्रेशराइज हो जाते, चैंटिंग भूल जाते हैं वो टाइम पे, तो अभी इतना सब काम आपके पास होके भी आपने कैसे कर दिया? आई एम रियली वेरी स्मॉल टू से दैट कि मैं कैसे बताऊं कि वो हो गया। इट वाज कार्तिक मंथ दैट टाइम, तो कार्तिक मंथ का मेरा प्रण था कि मैं रोज 32 राउंड करूंगी, तो पता था कि शादी है आगे, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि मैं 32 करूंगी। आ गया मन में, आई हैव डिसाइडेड कि मैं कर लूंगी। कर पाऊंगी या नहीं तब तक पता नहीं था, बट वो मोटिवेशन कृष्णा से ही मिला
जब भी टाइम मिलता था आई यूज्ड टू सिट एंड डू 1 राउंड 2 राउंड 1 राउंड 2 राउंड एक राउंड करके फिर जैसे मैंने एंड ऑफ द डे तक मैंने 32 कंप्लीट करती थी मैं डेली। तो बिकॉज ऑफ कार्तिक मंथ, वो कार्तिक मंथ की एक अलग सी अपनी एक ये होती है ना हमारे ऊपर मर्सी जैसी कि हमें करना है, ये थोड़ी ऑस्टेरिटी करनी है जो हम साधु संगा में सुनते रहते हैं हमेशा। तो उस वजह से मेरे से ये मतलब आई वॉज नो वन टू डू इट, इट वॉज कृष्णाज मर्सी जिन्होंने करा के लिया मेरे से, आई कैन से दैट बिकॉज इट वॉज माई डिजायर टू डू, तो उन्होंने वो फुलफिल मेरे से करा लिया। तो आई डोंट नो हाउ इट हैज कैसे हो गया तब वो वेरी नाइस माताजी, या एंड सुजाता वेरी नाइसली उन्होंने पॉइंट आउट किया, क्योंकि हम लोग इतना सा थोड़ा सा काम आ जाता है हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो इतना बिजी शेड्यूल में इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू सुजाता माता जी, थैंक यू हेमा माता जी। ओके 1:03 हो रहे हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है? सुजाता? हरे कृष्ण, मुझे धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू हेमा माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और विशाखा माता जी से मेरे को एक पूछना है। माता जी, आपने जो बोर्ड का एग्जाम्पल बताया तो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था, मैं क्लियर सुन नहीं पा रही थी वो टाइम पे, तो कैन यू रिपीट दैट पॉइंट अगेन मैम? माता जी, प्रभुपाद का एग्जाम्पल है ये कि जो कश्ती वाला जो बोटमैन होता है, अपने शाम को अपना सारा जब घर आता है तो अपनी बोट को भी पार्क करना होता है ना, बोटमैन को भी, तो उसको खींच के लाना पड़ता है पानी में से, और वहां सैंड के ऊपर तक खींच के थोड़ी दूर तक ले जाना पड़ता है पार्क करने के लिए। तो जब वो उसको खींच रहा होता है, उसके पैर में शंख पत्थर बहुत कुछ चुभते हैं, और गर्म भी होती है रेत कितनी बार, तो वो अपने आप को कोसता हुआ जाता है कि ये क्या, मुझे इतनी दुख तकलीफ मिल रही है। और वो मन ही मन ऐसा सोचता है कि जब मैं अमीर आदमी हो जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे पूरा कार्पेट करवा दूंगा ताकि मुझे ये सब चुभे नहीं, और मेरी बोट अच्छे से यहाँ पे मैं आराम से पैक कर। मतलब उसकी कितनी छोटी सोच है कि वो सोच रहा है कि मैं अमीर होऊंगा तब भी मैं ऐसे मजदूरी कर रहा हूँगा, है ना, बोट चला रहा हूँगा, मेहनत कर रहा हूँगा। But Prabhupada is saying that he cannot understand, he is so foolish that if you are rich, why do you have to do all this work? है ना? So ultimately we are all children of the multi-millionaire Krishna, Vasudev Krishna. तो हम सब compromise क्यों कर रहे हैं? For small things. Why are we settling for small things? We should aim for going back home, back to Godhead, as the multi-millionaire children of a multi-millionaire father. ये हमारा बर्थ राइट है। तो हम इसको भूल कर क्यों सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, 10th बेस्ट चीज के लिए सेटल हो रहे हैं? We should be focused just on on service to Krishna, so that he gets pleased and he calls us back home, and we don't get distracted so much by enjoying the little successes that we get. अरे आज इतनी सारी मच्छी पकड़ ली, तो we are very happy, कि इसी में खुश हो गए, अच्छा आज का मेरा गुजारा अच्छा हो गया, या कहीं से कुछ और मुझे एडवांटेज मिल गया तो उसी में खुश है। बट लक्ष्य से अपना आंख नहीं हटानी है कि इस चीज के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पे, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। We should be going back and meeting our multi-millionaire father. And that's all, Mataji. Thank you. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। माता जी, आपका क्लास भी बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु। आई रियली लाइक द कल्चर जो आपने अपनी क्लास में एक बनाया है। एवरीबडी सो कर्टियस एंड दे आर सो इतना थैंक करते हैं फॉर एवरीथिंग, they glorify for before class, after class, during class. This is something that I've learned from your class. Everybody is so courteous, and
I mean, very encouraging. It is very encouraging to the listeners also, to the speaker also, and everybody's so humble, like you, just like you. So I've learned a lot today from Sadhu Sangha, from Gopi Manohar Prabhu. Thank you so much for giving me this opportunity of service. Thank you, Mataji. And it was a very wonderful show. इतना सारा हार्ट पाते मैंने कभी नहीं देखा. So I request you कि आप बार-बार ऐसे आते रहें and give your appreciation. So it was really wonderful. The way you explained was very nice. सबको अच्छा लगा. और वो जो मैप वाला जो एग्जांपल था, I liked it very much. जैसे अगर हम लोग जंगल में घूम गए और कोई है गाड़ी में जा रहा है, उसके पास मैप है, हेडलाइट है, गाड़ी है, तो उसमें उसके साथ हम लोग जाना. वैसे ही है कि Prabhupada is that man who is having that map, the car, the headlight. तो तुरंत उनका चरण पकड़ के हम लोग को उस गाड़ी में बैठ के we have to get out of this forest. जैसे वो पहले वाला था मोहकलीला जंगल है, मोह के इसमें फंसे हैं. We have to get out. So it was a very nice example. So it was very good message. And the question answers also were very yes. And one thing I liked very much was that not only philosophy है ऐसा, मतलब ये करना है, शास्त्र में ये लिखा है, ये श्लोक नहीं, practically उसको कैसे करना है, how can we deal it practically. That was हम लोग नॉर्मली वही देखते हैं, क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई डॉक्टर आ जाए बोले मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको एक श्लोका बता दे तो बेचारा सर खुदा मैं भी करूँगी. So we are like that. हम लोग जब आते हैं तो we need some solution. ये नहीं कोई एक श्लोक बोल दिया, ये फिलोसफी बता दिया कि आसक्त रहो, ये मत करो, ये करो, वो करो, 4 बजे उठो. That is, yeah, no doubt वो होना चाहिए, but practical अगर एक हम लोग को एक उसके साथ में ना like an supplement मिल जाता है तो it becomes more easy to go through that road. So that was a very nice thing which you have, Mataji. So thank you very much once again. And yeah, I think there are no further more questions. So we'll stop here. And we'll go ahead with our normal Prabhupada Lilamrita. Satyaraj Prabhu, today who is doing Prabhupada Lilamrita? Jai Mataji. Yeah, okay. So thank you. We will thank Vishakha Mataji once again. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णव की जय. His Grace Gopi Manohar Prabhu की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. Also I want to make one more request. If Mataji is conducting lot of courses on DHYP, means Discover Your Permanent Happiness. So if anybody wants, मैंने वो जो share किया था group में, if anybody is मतलब interested, they can join, or if they can circulate it to their friends, family, relatives, or if anybody is interested, please get in touch with Mataji or with me. So we'll keep adding. And Mataji, we have seen how wonderfully she is guiding the people. So ये एक announcement था. So thank you, Mataji. We will relieve you if you have some other seva, and we will continue with the normal program. Thank you, Mataji. We share the Zoom link of that DYPH series. हर Saturday को होता है 5 to 6 और केवल 6 Saturdays ही हैं, जिसमें से 2 चले गए, 4 ही बचे. Okay. और Zoom link मेरे से ले लीजिएगा. I will